جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زی ایم سی پولیٹیکل اپڈیٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد چودھری۔ ناظرین کے توسط سے ہم اراؤنڈ دا گلوب جو بھی اہم واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنی آراء جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے جو بھی بات آپ لوگوں سے کی جائے وہ آپ لوگ اس سے متفق ہوں۔ آپ ذی شعور لوگ ہیں، آپ اپنی رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں، لہذا اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بڑے اہم واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں جن کا اجتماعی طور پر معاشرے پہ اثر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں ان کو اس کا پتہ چل سکے۔ آج کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ایک انتہائی حساس معاملہ جو ہے وہ میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، تو آج اسی سے بات ہوگی کیونکہ جتنی دفعہ بات کی جائے گی اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام الناس کے شعور کو بیدار کرنا ہے اور ان میں وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم نے سامنے لانی ہے تاکہ عوام کی ایک تربیت جو ہے وہ ہو سکے۔ تو اس حوالے سے آج جو اگر آپ ٹاپک دیکھیں، میرے خیال میں پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں اگر وہ ٹاپک آج کا جو ہے وہ کریں اور ساتھ وہ پکچر بھی اگر پاسبل ہو، پروڈیوسر صاحب سے کہی ہے وہ بھی اگر لگا دیں تو تاکہ پروگرام دیکھنے والے اور سننے والے جو ہیں ان کو بہتر جو ہے وہ روشنائی ہو سکے اس ٹاپک سے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے جمہوریت کا مقتول ناظم جاکیو۔ ناظم جاکیو کہنے کو ایک پیپلز پارٹی کا کارکن تھا، لیکن اب وہ ایک استعارہ بن چکا ہے۔ پاکستانی جمہوریت کس ڈگر پہ، کس روپ پہ چل رہی ہے اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ بات ہے۔ اب پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر ہمارا حکمران طبقہ جو ہے ان کو دن رات جمہوریت کے فائدے، جمہوریت کے ثمرات، جمہوریت کی کامیابیوں کے نعرے اور دعوے کرتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی۔ لیکن ناظم جوکیو کا جو قتل ہے وہ پاکستانی جمہوریت کے چہرے پہ ایک اب بدنما داغ بن چکا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر، یہ ناظم جوکیو صاحب جو ہیں وہ ہمارے اسکرین پہ آ رہے ہیں۔ اب یہ ناظم جوکیو یہ کارکن ہے کس کا؟ پاکستان پیپلز پارٹی، یعنی جس کی بنیاد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے عوام کے لیے رکھی اور پھر اسی عوام نے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا۔ اسی عوام نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 2 دفعہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا۔ اسی پیپلز پارٹی نے پھر جو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی تھی اس کو اقتدار میں پہنچایا، اسی عوام نے۔ لیکن اس عوام کو اس پیپلز پارٹی یعنی عوام کی جماعت کو عوام کے لیے کیا کیا؟ عوام کو خاص طور پر، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ناظم جوکیو کے حوالے سے ہے، تو کوشش یہ کروں گا کہ آج صرف
नाज़िम जोकियों के हवाले से ही बात की जाए। ये मकतूल है हमारी नाम नहाद जमहूरियत। मेरा सवाल जनाब बिलावल भुट्टो साहब से ये है कि आप जनाब जिस तरह से उछल कूद के, जिस तरह से गला फाड़ फाड़ के जलसों में और आप असेंबली में अवाम की बात करते हैं, तो आप नाज़िम जोकियों के कत्ल के ऊपर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? इस नाज़िम जोकियों का, ये तो आपकी पार्टी का था। नाज़िम जोकियों को किस बुनियाद पर कत्ल किया गया? अगर हम सिर्फ यही देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जिस जमहूरियत के आप दावे करते हैं, जिसके ढोल पीटते हैं, वहां पे एक शख्स को इस तरह बेईमाना तरीके से तशद्दुद करके हलाक किया जाता है और उसकी लाश को अजरक में बांध के फेंक दिया जाता है, इसलिए कि उसने किसी वडेरे के गैर कानूनी काम को सामने लाने के लिए वीडियो बनाई और उस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर उसने जो है वो अपलोड किया। ये बहुत बड़ा जुर्म था। जाम अवैस साहब जो कि एमपीए है, मुझे 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 पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के ऊपर बात करते हुए शर्म आती है कि कौन सी जमहूरियत की आप बात करते हैं। इस शख्स को इसके घर से ले गए फार्म हाउस में और वहां पे बेपनाह तशद्दुद किया गया इसके भाई के सामने, और जब इसने मिन्नत समाजत की मुझे जाओ, मैं कल दोबारा आ जाऊं, मेरे बच्चे घर पे, मेरा घर है, ये 4 बच्चों का बाप, तो इन जागीरदारों, इन वडेरों के कानों पर भी असर नहीं हुआ और इसकी तशद्दुद लाश को तीर के करीब फेंक दिया गया। अब आप जरा गौर करें, ये जमहूरियत है लोगों, ये वो जमहूरियत है जिसके नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप लोगों के हकूक को पामाल किया जा रहा है कि नाज़िम जोकियों के लवाहकीन को, वुरासा को 2 दिन तक धरना देना पड़ा, लाश के साथ ट्रैफिक ब्लॉक करनी पड़ी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। बिलावल भुट्टो साहब जरा बताएं तो सही ना, मुराद अली शाह साहब बात तो करें ना। अब आप टोपी पहन के उसके घर पे चले गए हैं और जनाब वहां पे जनाब दुआ कर रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं कि जनाब नाज़िम जोकियों को पूरा इंसाफ मिलेगा और जिसने भी जुल्म किया है उसके साथ जो है वो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन अभी वो तस्वीर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि 2 दिन के इहतजाज के बाद ये एफआईआर दर्ज होती है और उस जाम अवैस साहब जो है जो कि उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब जरा उनकी गिरफ्तारी का भी आप वीडियो देखें जरा, और थाने के अंदर जिस तरह से वो बैठे हुए हैं उसको भी आप देखें कि ऐसा लग रहा है कि वो कोई कातिल नहीं है, वो तो कोई कोई जनाब वजीर आला है, वजीर आजम है, ऐसे बैठा हुआ है और पुलिस अफसरान जो है वो उसके साथ सामने ऐसे, और उसके पीछे उसके गार्ड खड़े हैं, और यूं ऐसा महसूस हो रहा है कि जनाब वो थाने जो है वो कातिल के तौर पर गिरफ्तारी देने नहीं आया, बल्कि वहां पे वो बड़ी को मेहरबानी करने आया है।
जमहूरियत जिसमें एक आम आदमी, क्योंकि जमहूरियत क्या है, एक ऐसा निजाम हुकूमत है जो लोगों के लिए है, जो अवाम के लिए है, अवाम की भलाई के लिए है। अब अगर वही सिस्टम जो है वो अवाम को सहूलतें फराहम करने, इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो जाता है, तो फिर ऐसी जमहूरियत को दोनों से सलाह। और ऐसी जमहूरियत के दावे करने वालों पर, ऐसी जमहूरियत के ढोल पीटने वालों को भी दोनों हाथों से सलाह। ये तो जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं। और खास तौर पर सिंध के अंदर एक आम आदमी का इस्तेसाल जिस तरह से किया जा रहा है, इन वडेरों के तौर पर, इन जागीरदारों के हाथों से, इन ये मैं स्वाइपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, अच्छे लोग जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन क्या हुआ? वो शाहनवाज था मेरे ख्याल में नाम, जतोई, जिसने वो एक नौजवान लड़के को कत्ल किया था, क्या हुआ उसका? वो जिसके कमरे से चीफ जस्टिस साहब उसके वक्त के उसने शराब बरामद की, और जो बाद में फिर जनाब बन गई शहद, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? बिलावल भुट्टो साहब, क्या सारे कवानीन, सारी जेलें सिंध के अंदर सिर्फ गरीब आवाम के लिए है? आपके ऊपर तो आपके नाना की और आपकी वालदा मोहतरमा की पार्टी की बहुत भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपसे ये सवाल हम पूछते हैं कि क्या आपने इस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाया है? मेरी राय में तो बिल्कुल नहीं निभाया। आपकी मौजूदगी में अगर ये जुल्म होता है थानों के अंदर, आज सिर्फ इस नाजम जोखियों का जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे, बाकी बातें फिर किसी वक्त जो है वो होंगी। तो इसके ऊपर मैं समझता हूं क्या होगा, क्योंकि मैं एक कानूनदान हूं, कानून पढ़ता भी हूं और पढ़ाता भी हूं, प्रैक्टिस करता हूं। आप क्या करेंगे? आपकी इन्वेस्टिगेशन में, आपके पुलिस अफसरान में इतनी हिम्मत और जुर्रत है कि वो एक जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टिगेशन करके ये एमपी साहब जो हैं इनका चालान पेश करें, और फिर हमारे अदालती निजाम में इतनी सख्त है कि वो इसको सजा दे सके? नहीं है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बिलावल साहब, आप हुक्मरान जमात पर तनकीद करते हैं, आप, आपका राइट है, लेकिन क्या आप ये भी देखना गवारा करेंगे कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, आपके सूबे के अंदर क्या हो रहा है? वो एक जो बेगुनाह लड़की का मर्डर हुआ है, कत्ल किया गया है, उस केस में क्या हुआ है? क्या ये जो आप उछल उछल कर और गला फाड़ फाड़ के बातें करते हैं और तकरीर करते हैं, क्या इन जो आम आदमी है इसके लिए भी कोई बात करेंगे? बातें आप सब लोग हो कि सिर्फ अपने इक्तदार के लिए है, और अवाम को, नाज़म जोखियों को, हम जैसे लोगों को आपने सिर्फ अपने इक्तदार की हवस के लिए, लालच के लिए कुर्सी के तौर पर इस्तेमाल किया है। हमारे कंधों को आपने इस्तेमाल किया है इख्तियार के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे आप करेंगे जनाब, मुझे तकलीफ भी होती है और शर्मिंदगी भी होती है कि हम अवाम
किस तरफ जा रहे हैं। अब तो मैं लूट करता हूं इस सोशल मीडिया की जो पावर है, जो ताकत है, और इस सोशल मीडिया ने जो अवाम को थोड़ा बहुत शऊर दिया, यकीन जानिए अगर ये ना होता तो आज कभी भी वो जाम अवैस जोखियो जो है वो गिरफ्तारी ना देता। ये सिर्फ लेकिन ये है कि मेरा ये सवाल मैं आज अपने देखने वालों के लिए छोड़ के जाना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद सारा कानून जो है उसको सामने रखते हुए इसको सजा दिलवाई जाएगी? मेरा तो जमहूरियत पे ईमान ही नहीं है जी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट वे ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ने डिलीवर किया है या नहीं किया? क्या पाकिस्तान के अंदर नाम नहाद जमहूरियत ने अवाम के मसाइल को हल किया है या नहीं किया? अब तो किसी ना किसी तरीके से आप जनाब 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा हो गया है जनाब, आपकी जमहूरियत को भी किए हुए जनाब। ले लें, आप शुरू कर लें जनाब जुनेजो साहब से और आगे जनाब सारे का अब नवाज शरीफ साहब के 5 साल, जरदारी साहब के 5 साल, या इमरान खान साहब के 3 साल, ये सारे के आपको भी लगभग अब 30 साल होने वाले हैं। अब इस जमहूरियत ने एक आम आदमी के लिए क्या डिलीवर किया? उधर शहबाज शरीफ साहब को देख लें, नारेबाजी ऐसी है, ऊंची ऊंची बातें ऐसी हैं, आवाम के, आम लोगों के, आम शहरियों के तकालीफ से इनके दिल जो है वो फट रहे हैं। लेकिन नहीं, यकीन जानिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन दैट दिस लीडरशिप इज नॉट सिंसियर फॉर फॉर अस। ये लीडरशिप जो है ये आम आवाम के लिए ये मुखलिस नहीं है, इनको सिर्फ अपने इक्तदार की पड़ी है। और हम जैसे लोग जो है, नाजम जोखियो जैसे लोग जो है, जो मिन्नतें तरले करता रहा, समाजतें करता रहा कि जी मुझे छोड़ दो, लेकिन डंडों से तशद्दुद करके उसको मारा गया। इसका जवाब मैं कहूं कि पीपल्स पार्टी के साहिब इक्तदार जो हैं उनको देना पड़ेगा। ये सिर्फ मुराद शाह साहब का वहां चले जाना, उसके घर में लवाकिन के साथ हाथ उठा के दुआ कर देना, ये काफी नहीं है। मैं उस दिन सबसे पहला शख्स होऊंगा जो सलूट करूंगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को और अपने निजाम अदल को, जब मैं इस शख्स को सजा मिलते हुए देखूंगा। ठीक है, आम आदमी का एतमाद नहीं है। आम आदमी को कभी आपने देखा है, लोगों को कभी आपने देखा है जिस तरह से हथकड़ियों बांध के आपको जमीन के ऊपर बैठाया होता है, आपको थानों के अंदर लितर मारे जा रहे होते हैं, आपकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जा रहा होता है, आपको गालियां दी जा रही होती हैं, और आप लोग जो है वो फिर भी नारे मारते हैं जनाब जमहूरियत के। अवामी हुकूमत है जी, अवाम के लिए कर रहे हैं जी, अवाम के लिए मरे जा रहे हैं। अवाम के लिए कोई नहीं मरता, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए मरते हैं। इनको इक्तदार से 2 दिन बाहर रहना पड़े, इनकी चीखें निकल जाती हैं। और हम ऐसे भोले लोग हैं, ऐसे सीधे साधे लोग हैं कि हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए इनके दिलों में कोई दर्द है। याद रखिएगा, प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ यही कहूंगा, याद रखिएगा, अगर आज अगर एक आम शहरी ने आवाज बुलंद नहीं की पाकिस्तान के अंदर होने वाले जुल्म के ऊपर, जबर के ऊपर, तो फिर
ہم سب کا جو انجام ہے وہ ناظم جوکھیوں جیسا ہو سکتا ہے. ہماری عزت نفس کو بھی پامال کیا جا سکتا ہے. ہماری لاش بھی کسی جگہ کسی کپڑے میں بند مل سکتی ہے. لیکن جمہوریت کو سلام، بلاول بھٹو صاحب کو سلام، سندھ کے جگیرداروں کو سلام، سندھ کے وڈیروں کو سلام، سندھ کے قانون کو سلام، سندھ کے تھانوں کو سلام، اور خاص طور پر جناب ہمارے نظام عدل کو بڑا ہی سلام، جہاں پہ ایک دھنیا چور جو ہے وہ تو ایسے پستا ہے ساری ساری زندگی، لیکن جس نے ظلم کیا، جبر کیا، اس کے ساتھ ہمارے نظام عدل کا کیا سلوک ہے، اس کے اوپر میں اپنی رائے نہیں دیتا. آپ صاحب رائے ہو سکتے ہیں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ناظم جوکھیوں کے حوالے سے، اب ہم ناظم جوکھیوں کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن اس کے اوپر ہونے والے ظلم اور اس کے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، ان کو باپ کے سائے سے محروم رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں، اور وہ ہم زیڈ ایم سی نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے اٹھاتے رہیں گے. اگلے سنڈے تک کے لیے اپنے میزبان زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے سنڈے کو کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.